Hello everyone. So today we will discuss about the project management and the entrepreneurship in Unit 1. So let's start. First is introduction. Everyone is aware about the term entrepreneurship, which refers to the process by which the individual launch and the manage their business and the industry enterprise. Entrepreneurship में क्या है कि ये रेफर करती है एक टर्म जिसमें इंडिविजुअल लॉन्च कर सकते हैं और मैनेज करते हैं बिजनेस इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को. ओके. Entrepreneurs are those who risk and invest their own capital into the business and the industrial venture. Entrepreneurs risk takers होते हैं और इन्वेस्ट करते हैं अपनी ही कैपिटल बिजनेस में एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स में. ओके. The term entrepreneur immediately conjures up the image of the business tycoons like Ellen Mitchell, Bill Gates. Okay. While these rich, famous and the successful individual can be inspirational for us, ये जो tycoons है, business tycoon, ये हमारे लिए एक inspirational है. Okay. Inspiration है हमारे लिए. Most of us would find it difficult to associate our own life. Okay. Personalities or the abilities with them. But the fact is that virtually everybody is an entrepreneur. बल्कि फैक्ट ये है कि हर कोई entrepreneur है अपने ही कुछ ना कोई पार्ट में लाइफ के. ओके. entrepreneurial इज टर्म ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट. ये टर्म है एक सेल्फ डेवलपमेंट की. जैसे कि एक एथलीट है वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करता है जिससे कि वो अपनी इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस को एंड स्टेमिना को. इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिसीजन अ मैन डिसाइडिंग नॉट टू मैरी. ये एक टर्म है सेल्फ डिसीजन की. हम पे ही पूरा डिपेंड रहता है कि व्हाट वी डू. जैसे कोई मैन है उसका ही डिसीजन है not to marry and devoting the rest of his life in the service of the god. In terms of the creativity, like housewife using the waste material for making a piece of art. Housewife use करती है कुछ waste material को और convert कर देती है कोई piece of art में. And risk taking. अब risk taking में क्या हो गया कि एक teenage boy है वो trying कर रहा है bungee jumping को. So all these are based on our decisions. Okay. Now, meaning of the entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of creating a something new. कुछ new create करने का एक process है with the value by devoting the necessary time and effort. और इसमें हम अपना devote करते हैं necessary time efforts को. Okay. Assuming that the accompanying financial, psychic and the social risk and receiving the results reward of the monetary and the personal satisfaction and the independence. इसमें क्या होता है कि हम रिजल्ट एक चाहते हैं जो कि पर्सनल सेटिस्फाई करे और हमें इंडिपेंडेंस दे. ओके. अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज बेंड्रेट शो वो कहते हैं कि द पीपल who get on this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and if they can't find them they make them. इसमें इसका मीन ये कि जो पीपल इस वर्ल्ड में आते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप के वो पीपल लुकअप करते हैं सरकमस्टांसेस के लिए जो वो चाहते हैं. एंड इफ दे कांट फाइंड देम अगर वो उनको सरकमस्टांसेस नहीं मिलते तो वो क्रिएट करते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज बैंड्रेट शो. ओके. एंड इट सीम George Bandrate show was talking about the entrepreneurs because this is what entrepreneurs do. Actually में what क्या करते हैं entrepreneurs? George Bandrate हमारे यही बता रहे हैं. They create their own future. Entrepreneurs अपना create करते हैं अपना future. The entrepreneur understand possible future and they create the future of his own life. अपने ही future के वो मालिक होते हैं. Okay. Entrepreneurship is the tendency of a person to organize the business of his own and to run it profitably. Entrepreneurship में क्या होता है कि रन करते हैं अपना बिजनेस एक प्रॉफिट लेवल पे यूजिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप. क्वालिटीज कौन से यूज करते हैं entrepreneurship में? एक तो लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड द मार्जिनल कैलिब्री एक्सेट्रा. ओके. The term entrepreneur is often used interchangeably with the entrepreneurship. Okay. The entrepreneurship is the role played by or the task performed by the entrepreneur.
कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो ऑन्टरप्रेनर है एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जो ऑन्टरप्रेन्योरशिप है वो तो एक तरीके का प्रोसेस हो गया है, बल्कि ये जो रोल को जो कर रहा है परफॉर्म, वो कौन हो गया हमारा, वो एंटरप्रेन्योर हो गया, ऑन्टरप्रेन्योर। ओके। द सेंट्रल टास्क ऑफ द entrepreneur इज टू मॉडरेट रिस्क। सेंट्रल टास्क होता है कि मॉडरेट कर रखे रिस्क को एंड द इन्वेस्ट मनी टू अर्न अ प्रॉफिट बाय एक्सप्लोइटिंग द अपॉर्चुनिटीज। For this, he must possess a far-sightedness to perceive an opportunity। इनकी क्या होती है कि दूरदर्शी नजर होती है और ये अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं so that he can exploit it well in time. Okay. Although an entrepreneur has to perform a diverse function, entrepreneur कुछ diverse functions को perform करते हैं, like he must manifest many qualities, manifestations करते हैं कुछ qualities को अपने में to be a good entrepreneur. Okay. Importance क्या है हमारी entrepreneurship की? First, create a wealth for the nation, ये create करते हैं एक wealth nation के लिए और फिर individual as well. Okay. एंड इंडिविजुअल हु सर्च बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो इंडिविजुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं यूजली क्रिएट वेल्थ बाय एंटरिंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। द वेल्थ क्रिएटेड बाय द सेम प्ले अ कंसिडरेबल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। The business as well the entrepreneur contribute in the some other way to the economy। जो entrepreneur होते हैं एक वे में वो contribute ही कर रहे होते हैं इकोनॉमी में improve होए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एंड दी सर्विसेज और दी बूस्टिंग दी जीडीपी रेट्स बूस्ट हो एंड द टैक्स contributions। Okay. Their idea thoughts and the inventions are good to create a help for the nation। इनकी मदद से हमारा जो नेशन है वो बहुत ग्रो करता है। सेकेंडली हम पढ़ेंगे प्रोवाइड करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं मास ग्रुप ऑफ पीपल में। ओके। पीपल often hold a view that all those who do not get employed anywhere jump into the entrepreneurship। A real contrast to this is that 76% of the establishment of the new business in the year 2003 were due to the aspiration of chase the opening। Okay. This emphasizes that fact that the entrepreneurship is not at the encumbrance to the economy। What more is that approximately 34 millions of the fresh employment opportunities were created by the entrepreneurs from the period of the 1980। This data make it clear that the entrepreneurship had a nation towards the better opportunities, which is significant input to the economy। Okay. थर्ड पॉइंट है हमारा contributed toward the research and the development। जो entrepreneurs है वो R&D में भी हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम में। ओके। ऑलमोस्ट 2 से 3% तक ऑल ऑफ द इनोवेशंस आर ड्यू टू द एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही है। विदाउट द बूम ऑफ द इन्वेंशंस द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ मच ड्राई प्लेस टू लिव इन। ओके। Inventions provide an easier way of getting things done through a better and the standardized technology। Fourth हमारा it is challenging opportunities for the people। एक challenging opportunity है people के लिए। Also entrepreneurship is a challenging task है, but in most of cases में ये क्या होता है, the reward it gives are much more than an anticipates। इसके जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं जितना सोचा हुआ होता है इस प्रोसेस में एंटरप्रेन्योरशिप के। इट डज नॉट ओनली रिवॉर्ड एन एंटरप्रेन्योर एट द फाइनेंशियल लेवल। ये सिर्फ नहीं कि एक फाइनेंशियल लेवल पे ही रिवॉर्ड दे रहा है, बल्कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी रिवॉर्ड मिलते हैं। इट प्रोड्यूस अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन टू द एंटरप्रेन्योर। ओके। Entrepreneurship provide a self-sufficiency। The entrepreneurship not only become a self-sufficient। entrepreneurship क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है ये एक सेल्फ सफिशिएंसी को। जो entrepreneurship है नॉट ओनली बिकम द सेल्फ सफिशिएंट बट ऑल्सो प्रोवाइड अ ग्रेट स्टैंडर्ड, प्रोवाइड करते हैं ग्रेट स्टैंडर्ड जीने का। ओके। एम्प्लॉयज को
It provides some opportunity to the number of the people working in the organization. The basic factor which become a cause of happiness may be liberty, monetary rewards, and the feelings of the contentment that one get after doing the job. ये सब चीजें करके ओके therefore the contribution of the entrepreneurs make the economy an improved place जीने के लिए बना देते हैं. जो ये contribution हमारे कर रहे हैं entrepreneurs, ये क्या करते थे, इकोनॉमी को इतना वेल इम्प्रूव बना देते हैं जहाँ पे हमारी लाइफ इजी हो जाती है. सिक्स्थ में क्या है, स्काई स्क्रैपिंग हाई ऑफ अ apparent prospect. The individual gets maximum scope for the growth and the opportunity if he enters in the entrepreneurship. एक इंडिविजुअल को बहुत मैक्सिमम स्कोप और ग्रोथ मिलती है जब वो एक ये entrepreneurship के वर्ल्ड में एंटर करता है. He not only earn, the right term would be he learn, बल्कि ही वो सिर्फ अर्न नहीं करता, कमा नहीं रहा होता, बल्कि वो इस प्रोसेस में इतनी सारी लर्निंग होती है अर्न करते करते. This is real a motivating factor for any entrepreneur, as the knowledge and the skills he develop while owning his entrepreneur enterprise, okay, are his assist for lifetime and which usually lacks when a person is under employment. The individual goes through a grooming process when he becomes an entrepreneur. In this way, it not only benefits him but also the economy as whole. As a whole. Okay. Characteristic पढ़ेंगे हम entrepreneur की क्या है. Entrepreneur possess the following vital characteristic. First, and especially a skilled person, the entrepreneur is recognized as a person having a special skill. At the same time a person providing others for the motivation. पर entrepreneurs को एक इस तरीके से देखा जाता है कि वो बहुत स्किल पर्सन है, साथ ही वो सेम टाइम पे वो प्रोवाइड करता है, दूसरों को मोटिवेशन देता है. ओके, ही मे बी आइदर अ सिंगल इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल हो सकता है एक अपने ग्रुप में, वॉट एवर ही मे बी, को कोई भी हो जाए, बल्कि ही प्रोसेस करता है एक स्पेशल स्किल को विच इज नॉट जनरली फाउंड इन अ कॉमन मैन, जो कि एक कॉमन मैन में पाई नहीं जाती स्किल्स. सेकेंड थिंग इज इनोवेटर. ही इज राइटली नोन एज द इनोवेटर, उसे हम बोल सकते हैं. Who engage himself to innovate a new variety of the product, अपने आप को engage करता है, जो varieties of products है उसे वो innovate करते रहे. ओके, एक्सप्लोर करता है न्यू मार्केट्स के हॉरिजॉन्स को, इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड द मेथड्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज. According to the Schumpeter, the main characteristic of the entrepreneur is to innovate something. Main characteristic है हमारी entrepreneur की, वो कुछ innovate करे. Through such innovation, the execution and the effective use of the creative idea are ensured. हो सके. Okay, its success bring for the commercial achievement and the new horizon of the company emerge. Now, थर्ड हमारी करेक्टरिस्टिक है प्रोवाइडिंग अ कंप्लीटनेस टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोवाइड करते हैं ये कंप्लीटनेस एक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन में. एंड एंटरप्रेन्योर्स प्रोक्यूर्स अ नेसेसरी रिसोर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस से फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन and the utilizing them he provide a completeness to the factors of the production. Okay, moreover he endeavored to make a contact with the various market for his product and he is the risk taker. वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को लेकर वो कांटेक्ट करता है मार्केट में. एंड एंटरप्रेन्योर क्या है, हमारा एक रिस्क टेकर है एंड फंक्शन करता है एज अ कोऑर्डिनेटर की तरह. फोर्थ पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग पर्सन होना चाहिए हमारा एंटरप्रेन्योर. द एंटरप्रेन्योर इज सच अ पर्सन हु इज एंडोव्ड विद अ पर्सन टू मेक अ पर्सन डिसीजन एज रिगार्ड. ये एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है विद अ पावर टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन, एक प्रॉपर डिसीजन लेता है एज रिगार्ड्स टू एस्टेब्लिश ऑफ द बिजनेस. बिजनेस को एक एस्टेब्लिश करने के लिए उसका मैनेजमेंट एंड द प्रोक्यूरमेंट.
ओके और डिफरेंट फैक्टर्स के हो सकते हैं. मैटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्केयर्स रिसोर्सेस. Since he has a strong power of decision making, he can make a decision of the various matters repetitively. बहुत सारे matters पे वो एक quickly decision लेने वाला होना चाहिए. This achievement largely depends upon the ability of his decision making. Okay. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास अ मैन ऑफ द क्रिएटिव पर्सनालिटी. एक मैन जिसकी क्रिएटिव पर्सनालिटी है. As the term implies, he is known as the employer who makes the optimum utilization of the economic resource and thus carries on a productive activities. Okay, he has a quality of creating a something new and as such he is a person of creative personality. उसमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्रिएट कर सके कुछ समथिंग, कुछ नया, और वो एक ऐसा पर्सन है क्रिएटिव पर्सनालिटी का. फॉर दिस ही इज अ पर्सन एज अ क्रिएटिव इनोवेटर है. ही क्रिएट्स अ न्यू आइडिया को क्रिएट करता है, नर्चर्स करता है उनको इन द लाइट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस के अंडर knowledge and the intellect. Through all the such activities his creative and the personality and the mentally are exposed. Okay, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, अ प्लान मेकर है. एन एंटरप्रेन्योर इज द ओनर, एम्प्लॉयर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट क्रिएटर है, डिसीजन मेकर है, रिस्क टेकर है, कोऑर्डिनेटर है. सी वी कैन सी दैट देयर आर मैनी टर्म्स आर यूजिंग फॉर आवर एंटरप्रेन्योर. ओके, बेसिक प्लान मेकर है वो हमारा, एंड अ यूजर ऑफ द मार्केट इंफॉर्मेशन, क्रिएटिव इंडिविजुअल एंड द इनोवेटर. फॉर दिस ही इज रिगार्डेड एज द प्रीनियर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, सेवेंथ है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक अ प्रीनियर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसमें क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर इज ऑनर, एम्प्लॉयर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन मेकर, रिस्क टेकर, coordinator and the user of the market information, creative individual and the innovator. 8 है हमारा डायनेमिक लीडर. ही प्रोवाइड्स अ प्रॉपर मोटिवेशन, प्रोवाइड करता है प्रॉपर मोटिवेशन टू हिज वर्कर्स को, अपनी टीम को, बाय मीन्स लीडरशिप. ओके, so that the workers can give their best efforts to the interest of the organization. जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसे ही फिर तो टीम परफॉर्म कर सके. हमारा जो लीडरशिप क्वालिटी भी होती है एंटरप्रेन्योर में. ओके, थर्ड पॉइंट इज नाइन्थ इज क्रिएटर होना चाहिए वेल्थ का. कैसे? वेल्थ प्रोड्यूस करनी चाहिए उसको. The entrepreneurs use of various resources for running his product or the services are produced. Okay, hence the entrepreneurs create his personal wealth. ये create करते हैं अपनी personal wealth, at the same time पे ये help करते हैं increase कर सके social wealth को भी, because a new wealth is created due to the demand for product. न्यू वेल्थ तभी क्रिएट होती है जब डिमांड होती है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की मार्केट में. एज सच द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ इज वन ऑफ द बेसिक फीचर है हमारे एंटरप्रेन्योर के. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस. इन द ओपिनियन ऑफ द जॉन हॉर्नेडी, one of the important feature of the entrepreneur is that he should be a self confident होना चाहिए, वो एक ambitious person होना चाहिए. And okay, self confidence is regarded as the one a remarkable characteristic features of his success key. Okay, this self confidence lead him to face any situation. self confidence होगा तो वो कोई सी भी situation face कर सकेगा boldly. Okay, self confidence relate to the harmonize between the work and the work. Okay, similarly he should always have in himself and the high ambition भी होना चाहिए. Okay, at the same point of time. फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को? फॉलोइंग आर द वेरियस फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को. फर्स्ट इज एजुकेशनल फैक्टर्स. इसमें है कि देयर इज अ नीड ऑफ हैविंग अ ड्रास्टिक चेंज इन द एजुकेशनल पैटर्न. ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है उसमें चेंज हाई. इकोनॉमिक एंड सोशल political environment, more and more young minds should be trained to create avenues for the self development. Okay, ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है वो क्या करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करे.
डिजाइनिंग अ सुटेबल प्रोग्राम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, एक अलग से डिजाइन करना चाहिए प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और ये ऐसा सब्जेक्ट भी होना चाहिए स्कूल लेवल पे भी, जिससे कि जो हमारे यंग माइंड्स है उनको रियलाइज हो सके इम्पोर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, एज द नीड ऑफ द हार्ट आज के टाइम में। ओके, सेकेंड इज लीगल। वी आर स्टडिंग द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरह। लीगल में क्या आ जाता है, द द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द वीक टिल द टाइम दे नीड इट। सो हम लीगल फैक्टर्स पे थे। ओके, लीगल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, the law must protect the weak till the time they need it. Entrepreneurs in a small sector have a limited resources and cannot compete with the large scale manufacturers. Reservation of a certain items of a product for exclusively production in a small sector is one a legal measure to protect the interest for a small scale enterprise. क्या होता है कि स्मॉल स्केल के जो होते हैं उनमें ना लिमिटेड सोर्स होते हैं। सो क्या आता है, रिजर्वेशन होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर आइटम का जो कि एक्सक्लूसिवली ये यूज हो सके इसमें। ओके, थर्ड है हमारे पास फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का, मींस लैंड एंड द फैक्ट्री शेयर्ड एट द कंसेशनल रेट्स, expedite supply of the power, water, coal, and the other resources of energy. Transport facilitates availability of the wagons. Supply for a raw material and other facilities, physical facilities should be provided by the government to facilitate a setting up of a new enterprise. इसमें क्या है, लैंड और फैक्ट्री शेड्स की नीड होती है एंड गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि सेटअप हो सके हमारी एंटरप्राइजेस। फोर्थ है हमारा इंस्टीट्यूशनल एंटरप्राइज सॉरी entrepreneurs need advices on the lines of the manufacturers, which may be suitable sources of a raw material, finance, and the other facilities like a technical how tools and the equipments. सो एक प्रॉपर एडवाइस की भी नीड होती है। द entrepreneurs also need to know about the opportunities and the threats to their business, government policies, development in the international economic scene, technological changes, etc. Institutions have to be established to keep the entrepreneurs informed about all these matters. So overall इसका मीन्स था कि जो institutions है वो establish होने आने चाहिए जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके इन सब मैटर्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। ओके, जो अपने वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स को। फाइनेंशियल में क्या है कि द नीड्स फॉर द फिक्स एंड द वर्किंग कैपिटल शुड बी equitably needed if the new enterprise are to serve and the grow. The lack of the financial resource deters potential enterprise to start with the new ventures. The problem become a more acute in the capital sought developing countries where the business and the industry how to put up with the underdeveloped capital market. Okay, the government in these countries should see the capital market is developed with a newer and the innovative capital market instrument and the strong financial institutions. Sixth is procedural. The bureaucratic procedure of the government offices, industry departments, and the financial institutions is a great hindrance to the growth of the new enterprise. The entrepreneurs have to run to differently job and to complete a number of the office in the government for the different jobs and complete a number of the formalities prescribed. Okay, by several laws, rules, and the regulations, it would be a better for the potential and the existing entrepreneur if the number of the procedural and the legal restrictions to the entrepreneur is reduced and the administrative mechanism is developed to look after all the needs and the requirements the entrepreneur. Seventh one is communication. The informational gap push many entrepreneurial ventures toward the extension. Okay,
unless an entrepreneur's known about the market potential, competition in the market, technological and the other deployments, the entrepreneur is not likely to succeed in the venture. The government departments, organization of the entrepreneurs, financial institutions, and the business consultant have a roles to play in this regard. It is very important for the entrepreneurs to succeed. Eighth factor is information and technologies communication. Okay. मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैज एंटर एवरी वॉक ऑफ द ह्यूमन लाइफ में आ गई है. फास्टर मोड ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू द ईमेल, networking, web technologies have revolutionized the industrial scene. Okay, with the fast up the date information at the different level of the management. The management process also have gone considerable changes in the decision making and the implementation. Okay, 9 point is rapid change. IT and the communication revolution, the market within the industry and the outside the industry has increased many folds. Okay, the exchange of the information and the availability of the resources bringing change in the industry faster than before in the history. Rapid changes हो रहे हैं. 10th है हमारे पास पॉइंट लार्ज साइज. देर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द ऑटोमेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटराइज प्रोडक्शन. Okay, and the process controls in the industry. Okay, the demand for the goods and the geographical reach is bringing large size of industries as well the service. The service get advantages of the economies of the scales in the manufacture marketing. So ये तो हमने पढ़ लिए जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को. फर्स्ट था हमारा एजुकेशनल फैक्टर, सेकंड लीगल, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ इंस्टीट्यूशनल, फिफ्थ फाइनेंशियल, सिक्स्थ प्रोसीडियल, सेवन कम्युनिकेशनल, एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन, नाइन्थ रैपिड चेंजेस, टेंथ लार्ज स्केल. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. बाय द सिंपल डेफिनेशन में all active owners managers are entrepreneurs है. ओके, दे कैन बी क्लासीफाई, दो कैटेगरी में क्लासीफाई हो गए हैं. ये क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. entrepreneurship can be classified on the basis of the ownership as follows. Okay, like first classification on the basis of the entrepreneurship. First हमारा entrepreneurship can be classified हुआ है on the basis of the ownership. फर्स्ट वन इज हमारा फाउंडर्स या फिर प्योर एंटरप्रेन्योर्स. इसमें क्या है, एज द टर्म सजेस्ट करती है, दे आर दोज इंडिविजुअल हु आर फाउंडर्स एंड द प्योर एंटरप्रेन्योर्स. ओके, फाउंडर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर द वन हु कंसेप्चुअलाइज अ बिजनेस प्लान. ये कंसेप्चुअलाइज करते हैं बिजनेस प्लान को. ओके, एंड देन पुट इन द एफर्ट्स टू मेक द plan a success. Okay, for example, Dhirubhai Ambani of the Reliance Group. सेकेंड है हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑपरेटर्स ऑफ द फैमिली ऑन बिजनेस. सेकेंड जनरेशन ऑपरेटर्स ऑफ द फैमिली ऑन बिजनेस के क्या है ये, दे आर द इंडिविजुअल्स है who are inherited the business from their fathers and the pro-fathers. ये वो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने अपने फादर से, प्रो फादर्स से इनहर्ट कर लिए बिजनेस. जैसे कि मुकेश अंबानी एंड दी अनिल अंबानी, ये सन है धीरूभाई अंबानी के ऑफ द रिलायंस ग्रुप के. नाउ ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गए, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड द रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. ओके, नाउ है फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइजीज में क्या आता है कि फ्रेंचाइजीज हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है फ्रेंचाइजीज वर्ड. इसका मतलब है फ्री. ओके, फ्री. इट इज अ मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस. एक तरीके का मेथड है जिसमें बिजनेस करते हैं. वेयर इज द पेरेंट ओनर, जिसे हम फ्रेंचाइजर बोलते हैं, लाइसेंस होता है उसके पास हिज ट्रेड मार्क्स का, एंड ट्राइड एंड प्रूवन मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस अप्लाई करता है अपनी फ्रेंचाइजी में in exchange of recurring payments. Okay, here are the franchisees has not the conceptualized the business. जो franchisees है वो business को conceptualize नहीं करती but has invested his money and the time in the business. Okay,
अब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ऑन द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। ओके, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स में क्या आ जाता है, ये एक तरीके के एंटरप्रेन्योर्स है हु इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को, लाइक ही आइडेंटिफाई द नीड एंड द वांट टू कस्टम wants customer according to the manufactured product, उसकी नीड है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं नीड एंड उनको कस्टमर चाहिए होते हैं अपने मैन्युफैक्चर के जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जो सेटिस्फाई करने के लिए नीड एंड वांट्स, इट वुड इंक्लूड ऑल द एंटरप्रेन्योर्स एसेंशियली इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब हमारे पास ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स है जो कि अंडरटेक द ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो अंडरटेक करते हैं एक ट्रेडिंग एक्टिविटी को, जैसे कि बाइंग हो गई, सेलिंग गुड्स हो गए, सर्विसेज। ओके, एंड इट इज नॉट कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये कंसर्न नहीं होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे बन रहा है प्रोडक्ट। ओके, ही आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मार्केट, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पोटेंशियल मार्केट को स्टिमुलेट करते हैं, डिमांड्स एंड जनरेट करते हैं इंटरेस्ट अमॉन्ग द बायर्स, जिससे कि वो परचेज करें प्रोडक्ट को। एंड कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स में क्या है कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स एक तरीके के पर्सन है जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इनोवेटिव स्किल्स को अपनी एक ऑर्गेनाइज करने में एंड मैनेज करते हैं एक कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग को, which is registered under the statute or act that it give the separate legal entity। ओके, अब आते हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर में क्या है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर एक दोस्त एंटरप्रेन्योर है जो अंडरटेक करते हैं बिजनेस एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से, जैसे कि फार्म इक्विपमेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स और अदर इनपुट्स हो गए हमारे एग्रीकल्चर के। ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्टिव प्रोडक्ट्स दैट कैन इंक्रीज दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सपोर्टिव प्रोडक्ट जिससे कि इंक्रीज हो सके एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजीज, मैकेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर यील्ड। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स क्या क्या है। फर्स्ट हो व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है हम ये समझते हैं। We define the term as the process by which the teams within the established company conceive, foster and the launch, manage a new business that is distinct from the parent company। parent company से distinct है but leverage the parent assist, market position and the capabilities or the other resources। It differ from the corporate venture capital से अलग होते हैं which predominantly pursue financially investment in the external company। Okay, although it often involve external partners and the capabilities ये involve होती है इसमें, जैसे including the acquisition, it engage the significant resources of the established company and the internal teams internal teams typically manage करते projects को। it also differ है from the snip outs में, which are generally constructed as a stand-alone enterprise that do not require a continuous leveraging of the current business activities to realize their potential। Okay, first हमारे पास the opportunities model क्या है। all companies begin as the opportunity, जो सारी कंपनी होती है वो begin होती है opportunities की तरह। okay, without any designated organization ownership or the resources, corporate and entrepreneurship proceed if it does at all based on the effort के basis पे and serendipity of the entrepreneur project champions, people who toil against the odds creating a new business often in spite of the corporation। the opportunities model क्या है, ये वर्क करता है only well in the trusting कॉर्पोरेट कल्चर्स में एंड दैट आर ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन, और इसमें एक्सपेरिमेंटेशन ओपनली होते हैं एंड हैव अ डाइवर्स सोशल नेटवर्क बिहाइंड दी ऑफिशियल हायरार्की। ओके, इन अदर वर्ड्स में बोले तो प्लेसेस वेयर द मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे से बोल देते हैं यस, विदाउट दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट गुड आइडियाज कैन easily fall and the through the organizational crack or the receive करते हैं insufficient funding। Consequently, the opportunities approach is
डिपेंडेबल है फॉर मैनी कंपनीज के लिए। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन गेट सीरियस अबाउट द ऑर्गेनिक ग्रोथ, एग्जीक्यूटिव रियलाइज करते हैं दे नीड अ मोर देन अ डिफ्यूज ओके एडहॉक अप्रोच। As a result of its past success with the mimically invasive surgical procedures, Zimmer has the instituted more the formalized development practices for bringing a new business to the market. As such, the companies has begun to involve the beyond the opportunist model. अब हमारे पास आता है enabler model क्या है? The enabler model में होता है कि the basis premise of the enabler model is that employees across an organization will be willing to develop a new concept। इसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को इफ दे आर गिवन अ एक्विडेट सपोर्ट, उनको एक्विडेट सपोर्ट मिले तो ओके, डेडिकेटिंग रिसोर्सेज एंड द प्रोसेसेस बट without any formal or organizational ownership okay, enable teams to pursue opportunities on not their own is so far as they fit the organization strategies frame, जिससे कि वो organization की strategy frame में fit बैठ सके। in the most involved version of the enabler model में क्या है, कंपनी प्रोवाइड करती है फॉलोइंग ये चीजें, लाइक क्लियर क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग दी विच अपॉर्चुनिटीज टू प्रोड्यूस, किस अपॉर्चुनिटी को हमें चूज करना चाहिए, एंड एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर दी फंडिंग क्या क्या है, डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बोथ रिक्रूटमेंट एंड द रिटेंशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरली माइंडेड एम्प्लॉयज के लिए, एंड परहैप्स ऑल द एक्टिव सपोर्ट होना चाहिए फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट से ओके। द एडवोकेट मॉडल क्या है, वॉट अबाउट केसेस इन विच फंडिंग इज नॉट रियली द इशू, उन केसेस में क्या होगा कि अगर वो है हमारी फंडिंग वो एक्चुअल में इशू नहीं है, उन केसेस में क्या होता है कि एडवोकेट मॉडल जो होता है कंपनी को असाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू बिजनेस ओके, विच इंटेंशनली प्रोवाइड करते हैं ये ओनली मोडेस्ट बजट को टू द कोर ग्रुप को ओके। एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन act as an evangelists and the innovation experts okay, facilitating corporates entrepreneurship in the conjunction with the business units। द प्रोड्यूसर मॉडल क्या है, अ फ्यू कंपनी जैसे कि होगी IBM, मोटरोला एंड द कारगिल परस्यू करते कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को बाय एस्टेब्लिशिंग एंड दी सपोर्ट करते ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को विद द सिग्निफिकेंट डेडिकेटेड फंड्स के साथ एंड और द एक्टिव इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस फंडिंग। as with the enabler and the advocate model, and objective is to encourage a latent entrepreneurs okay, बट द जो प्रोड्यूसर मॉडल है वो ऑल्सो एम है उसका जो प्रोटेक्ट कर सके वो एमर्जिंग प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम द टर्फ बैटल से, एनकरेज कर सके क्रॉस यूनिट कोलैबोरेशन, बिल्ड कर सके पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव बिजनेस एंड क्रिएट कर सके पाथवे फॉर द एग्जीक्यूटिव के लिए जिसे परस्यू कर सके एक आउटसाइड करियर देयर बिजनेस यूनिट्स के लिए ओके। अब हमारे पास है एंटरप्रेन्योर के प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस इसमें होते हैं। And it is the simplest and the entrepreneurs do can be viewed as the 6 stage इसका procedure है। फर्स्ट है हमारे पास दे सी दी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स डोंट, ये उसमें से अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं जहाँ पे दूसरे लोग नहीं देख पाते। सेकंड है दे हैव अ विजन, इनके पास एक विजन होता है, क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि करना क्या है इनको, क्या करना है। थर्ड है they pursue others of their visions and they can communicate the concept of effectively, communicate करते हैं concept को very effectively with a vision के साथ। फोर्थ है दे गैदर करते रिसोर्सेज टू मेक देयर विजन, जिससे कि विजन को क्रिएट कर सके, बिकम अ रियलिटी, अपने विजन को एक रियलिटी में क्रिएट कर सके। रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हैं ये मनी, पीपल एंड थिंग्स। फिफ्थ है ये दे ऑर्गेनाइज करते हैं इन रिसोर्सेज को जिससे कि क्रिएट कर सके ये न्यू वेंचर्स को, प्रोडक्ट करते हैं और मार्केट लीडरशिप टीम्स में। सिक्स्थ है ये कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग डिमांड ऑफ दी मार्केट, जैसे चेंजेस होती है, डिमांड होती है मार्केट के, वैसे अपने आप को ये चेंज कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इंट्राप्रेन्योरशिप। पहले तो हमने पढ़ लिया एंटरप्रेन्योरशिप, अब हम पढ़ रहे हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। ये एक टर्म है जो एमर्ज
in during the 70s. Okay, several senior executives of the big corporations left their job to start their own small business because of the top boss in those corporations were not receptive to the innovative idea. इसमें क्या था कि जो बिग कॉरपोरेशंस के एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने अपनी लेफ्ट कर दी जॉब और स्टार्ट कर दिया अपना न्यू बिजनेस को, बिकॉज जो टॉप बॉसेस थे कॉरपोरेशन में वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे एक इनोवेटिव आइडियाज को. सो दीज एग्जीक्यूटिव टर्न दी एंटरप्रेन्योर्स अचीव फिनोमिना सक्सेस इन देयर न्यू वेंचर. Okay, posing a threat to the corporation they had left. These type of जो entrepreneurs है इनको हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर्स. ओके, अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं हम इंटरप्रेन्योर्स की क्या है. ये है फर्स्ट है हमारे पास इंटरप्रेन्योर्स ब्रिज द गैप बिटवीन द इवेंटर्स. ये ब्रिज एक गैप है इन्वेंटर्स एंड दी, ब्रिज कर देते हैं गैप को एक इन्वेंटर्स एंड दी मैनेजर्स के बीच में. दे टेक अ न्यू आइडियाज एंड टर्न डैम इनटू द प्रॉफिटेबल रियलिटीज में टर्न कर देते हैं आइडिया को. सेकंड है दे हैव अ विजन एंड करेज करते हैं रियलाइज करने के लिए. ओके, थर्ड है दे कैन इमेजिन व्हाट बिजनेस प्रोस्पेक्ट विल फॉलो फ्रॉम द वे कस्टमर रिस्पॉन्ड टू देयर इन्फॉर्मेशन. ये एक इमेजिन करते हैं कि कौन सा इनको बिजनेस का प्रोस्पेक्ट फॉलो करना जिससे कि जो कस्टमर है रिस्पॉन्ड करे इनकी इनोवेशंस को. फोर्थ है हमारे पास दे हैव द एबिलिटी प्लान टू नेसेसरी स्टेप फॉर द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द आइडिया. इनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है अपने आइडिया को लेके. फिफ्थ है हमारे पास दे हैव अ हाई नीड ऑफ अचीवमेंट. इनके पास एक हाई नीड होती है अचीवमेंट की एंड दे टेक अ मॉडरेट कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं मॉडरेट लेवल पे. सिक्स्थ है हमारे पास दे आर डेडिकेटेड होते हैं अपने वर्क को लेके एंड दे शट आउट अदर कंसर्न कर देते हैं इंक्लूडिंग देयर फैमिली लाइफ. एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम अपना एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में. ओके, मीनिंग है हमारा एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू द पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस. एंटरप्रेन्योर वो है जो अपना बिजनेस सेटअप करता है अपने आइडिया के कॉन्सेप्ट के साथ. ओके, इंटरप्रेन्योर में क्या है, ये रिफर्स टू द एम्प्लॉय और एन ऑर्गेनाइजेशन, रिफर करता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के who is in charge of the undertaking innovation, जो इंचार्ज है इन अंडरटेकिंग इनोवेशंस का इन अ प्रोडक्ट एंड द सर्विस प्रोसेस में. अप्रोच क्या है हमारा एंटरप्रेन्योर में, ये इंट्यूटिव है एंड इंटरप्रेन्योर का जो प्रोसेस है वो हमारा रिस्टोरेटिव है. रिसोर्सेज यूज करता है एंटरप्रेन्योर, अपने ओन रिसोर्सेज यूज करता है एंड इंटरप्रेन्योर यूज करता है कंपनी के रिसोर्सेज जो कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं. कैपिटल की बेसिस पे अगर डिफरेंस करें तो एंटरप्रेन्योर अपने आप ही रेज्ड हुआ है, बल्कि जो इंटरप्रेन्योर है वो कंपनी के द्वारा फाइनेंस करा गया है. एंड एंटरप्रेन्योर में है कि ये न्यूली एस्टेब्लिश है और ये एग्जिस्टिंग वन है हमारा इंटरप्रेन्योर पहले से ही एग्जिस्ट करता है. डिपेंडेंसी में अगर देखें तो एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट है, बल्कि इंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट होता है. रिस्क में क्या है कि ये बॉर्न बाय द एंटरप्रेन्योर, ये जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होते हैं और रिस्क अपना हाई टेक लेते हैं, मतलब हाई टेकिंग रिस्क कैपेबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर में. बट जो इंटरप्रेन्योर है वो मॉडरेट रिस्क लेते हैं और कंपनी के द्वारा ही ली जाती है. ये वर्क करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर, क्रिएट करते हैं एक लीडिंग पोजीशन मार्केट में, बल्कि जो इंटरप्रेन्योर है वो चेंज एंड रिन्यू कर देते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को और कल्चर को. ओके, अब है हमारे पास ईडीपी. ईडीपी क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में क्या होता है कि as this term itself denotes, EDP is a program means to develop a entrepreneur abilities among the people. ये ऐसे प्रोग्राम जो एबिलिटीज को डेवलप करे पीपल में. इन अदर वर्ड्स इट रिफर्स दी इन कैलकुलेशन डेवलपमेंट एंड दी पॉलिशिंग दी एंटरप्रेन्योरशिप को पॉलिश करे इन अ पर्सन नीड टू एस्टेब्लिश एंड सक्सेसफुली रन हिज एंटरप्राइज. ओके, Thus, the concept of the entrepreneurship development program involve equipping a person with the required skills and the knowledge needed for starting and running the enterprise. अब need क्या क्या है entrepreneurship development program की that entrepreneurs possess a certain competencies or the traits. ठीक है, these competency or the traits are the underlying characters of the entrepreneurs के which result in the superior performance and which distinguish करते हैं ये successful entrepreneurs को from the other unsuccessful performance अंदर वन से.
ओके जैसे कि हमें पता है एज वेल नोन बिहेवियर साइंटिस्ट एक थे डेविड सी एम सी सिलेंडन 1961 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेड एन उन्होंने क्या कहते हैं एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन करी थी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में ही वो हो गई कन्वर्ट। वाई सर्टेन सोसाइटी डिस्प्ले ग्रेट क्रिएटिव पावर्स, कि वाई जो सर्टेन सोसाइटीज है डिस्प्ले करती है क्रिएटिव पावर्स को एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ देयर हिस्ट्री, वॉट वॉज द कॉजेज ऑफ देयर क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी, उस समय क्या थे कि इतना क्रिएटिव बर्स्ट था उनकी एनर्जी में। ही फाउंड दैट द नीड ऑफ अचीवमेंट वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके इट वॉज द नीड फॉर द अचीवमेंट, नीड थी अचीवमेंट की दैट मोटिवेट करती थी पीपल को वर्क हार्ड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम मनी मेकिंग वॉज अ इंसिडेंटल, मनी मेकिंग एक इंसिडेंटल था। इट वॉज ओनली अ मेजर ऑफ द अचीवमेंट नॉट इज अ मोटिवेशन। ओके अब जो ऑब्जेक्टिव है हमारे ईडीपी के वो क्या क्या है। द मेजर ऑब्जेक्टिव है इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के है, फर्स्ट है ये डेवलप करता है स्ट्रेंथ दी एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी को, मोटिवेशन एंड द नीड फॉर द अचीवमेंट। सेकेंड है एनालाइज करता है इन्वायरमेंट के सेटअप को, रिलेट करता है स्मॉल इंडस्ट्री एंड द स्मॉल बिजनेसेस से। ओके सी है हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट करता है प्रोडक्ट। डी फॉर्मुलेट करता है प्रपोजल को कि क्या प्रोडक्ट के लिए प्रपोजल रखना है। एंड ई हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसका, अंडरस्टैंड करता है प्रोसेस को और उसके प्रोसीजर को इन्वॉल्व होते हैं जो एक स्मॉल एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। सो हमारा इस यूनिट में इतना ही था। ओके थैंक यू फॉर द वॉचिंग।